Welcome back to our special program Budget 2013. Tamil Nadu contributes over 50% of the country's textile production and 75% of its knitwear production. However, the economic downturn in the West, rampant power shortages in the state and rising input costs has led to a decline in the fortunes in the industry in recent years. Our correspondent Philip Matthew finds out the expectations of this sector. Tamil Nadu is the world's third largest producer of cotton and the fifth largest producer of man-made fiber and yarn. The state contributes over 50% of the country's textile production and 75% of its knitwear production. The hosiery hub, located in the western districts of Tirupur, Coimbatore and Erode in particular, contributes around 90% of India's cotton knitwear exports. However, the economic downturn in the West, rampant power shortages in the state and rising input costs has led to a decline in the fortunes of the industry in recent years. The production of man-made fibers in Tamil Nadu has dropped from 27 million kg in 2009-10 to less than half the figure today, even as textile exports have steadily declined from a high reached in 2010. Little wonder then that the stakeholders of the industry are looking for some succor in the upcoming budget. Continuing SENVAT for cotton textiles and reducing excise duty on ready-mades are the key demands of the manufacturing sector. Southern India Mills Association would like the continuing of SENVAT, either 0% or 6% for cotton textiles till the GST is implemented. We would like the Honorable Finance Minister to consider reducing the excise duty on ready-made garments from 12% to 6%. The export lobby is seeking sanction for the import of synthetics at concessional rates and special interest rates on loans to boost textile dispatches abroad. Synthetic and specialized fabric of cotton can be imported by paying 5% duty. That value is like, suppose we would have done 100 crores, 10% of the turnover can be permitted to import. And also it can be allowed to manufacture with the re-export by with the drawback. With bureau inputs, Philip Matthews, Doordarshan News, Chennai. और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर एचपी कुमार, जो कि सीएमडी हैं एनएसआईसी के। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कहें कि एमएसएमई सेक्टर, अभी हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री सेक्टर की बीते हिस्से में जो परेशानियां इंडस्ट्री के सामने हैं, वो परेशानियां और भी बड़ी हो जाती हैं अगर इंडस्ट्री छोटी हो जाती है, एमएसएमई सेक्टर में हो जाती है। किस तरह से वहां की समस्याओं को आपने वित्त मंत्री के सामने रखा और क्या कुछ आप देखते हैं कि क्या सबसे ज्यादा किए जाने की जरूरत है इस बजट में उनके लिए? देखिए, एसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उनकी समस्याएं जैसे कि आपने बताया उद्योग के क्षेत्र में, बड़े उद्योगों के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इनपुट कॉस्ट में वृद्धि जो कि इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है मुख्यतः। अब 70 से 80% जो लागत है वो इन्हीं पे ही होती है, तो इनकी वजह से उनकी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो ग्लोबली वो ठहर नहीं पाते। बिल्कुल। और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में भी फर्क पड़ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी फर्क पड़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यही है कि जैसे एसएमई सेक्टर की डिमांड है, एमएसएमई सेक्टर की, कि एक तो ड्यूटीज में रैशनलाइज करने की जरूरत है, उससे कॉस्ट थोड़ी सी ठीक होगी। इंपोर्ट ड्यूटीज में, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज में। और दूसरा, जीएसटी की सबको आशा है कि जीएसटी जितनी जल्दी आएगा एसएमई सेक्टर को उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, 2 से 3% लागत का उसमें हमारा अनुमान है कि फर्क पड़ेगा। तो जीएसटी के आने से फर्क पड़ेगा, उसकी उम्मीद है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो यह है कि सर्विस टैक्स, जिसमें काफी संख्या में जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो सर्विसेज में लगी हुई हैं, तो सर्विस टैक्स की जो एक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 10 लाख रुपए इस समय निश्चित है, तो उसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। एक्साइज एग्जेम्पशन लिमिट जो इस समय है वो 1.5 करोड़ रुपए है जी। कई साल हो गए उसको भी फिक्स किए हुए। तो चूंकि लागत में बहुत वृद्धि हो गई है तो उसमें भी बढ़ाने की डिमांड एक एमएसएमई सेक्टर ने की है। तो इस तरह से एक्साइज में कमी करके और टैक्स बेनिफिट्स में थोड़ा सा इंप्रूव करके उनकी कॉस्ट की जो
अनकॉम्पिटिटिवनेस सिचुएशन है, डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा ठीक किया जाए तो वो मार्केट में अच्छी तरह से चल सकते हैं. All right. Also joining us is leading fashion designer Ms. Ritu Kumar. Ms. Kumar, thank you so much for joining us here on Budget 2013. Ma'am, let's talk about the textile sector. We know you work very closely with craftsmen and weavers. Now, what is the problems that the indigenous textile and the fashion industry is facing in India, and what really needs to be done for that sector? Well, initially, I think what we have to understand is that the textile sector is a very large one, and it, to my mind, comprises of two things. Just once again, hello, there's an echo. Ma'am, if you could just remove your earpiece while you're answering that question, so you won't get the echo in your ear. If you just remove that earpiece while you're answering that question. Can you hear me now? Yes, ma'am. Please go ahead. Is it all right? Can they hear me now? Ma'am, please go ahead and answer the give us the ma'am, go ahead and give us the comments on what are the expectations of the textile industry from the budget. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. The textile sector in India, I think, is a very large one, and we talking about just the one that concerns me and the fashion industry, which is largely based on the craft sector of this country. Now, we have to understand that we are here sitting on an incredible wealth of textiles in this country, which I think in the rest of the world has almost disappeared. We single-mindedly don't understand the difference between the mechanized part of textiles and the handcrafted textiles that this country has to offer. And until we do understand that difference, we will not be able to do any policy decisions which will favor the handcrafted sector, which is not a very small one. It employs about 16 million people who are actually actively working in the textile craft sector at the moment. We seem to club them with the general ready-to-wear, with the general textiles, and they are taxed, and they also have a very cumbersome way of getting that tax out of little pockets and villages and hamlets, and women who are doing hand embroideries. For some reason, this sensitivity of what it should be in something which I would really think is almost a heritage of this country has not really penetrated. We did have at one time lots of schemes like the Weaver Service Centers, some sensitivity towards the handloom sector because it is the only one of its kind in the whole world today. But somehow that whole impetus of looking at it in a more sympathetic manner, as a matter of fact, in a manner like we would look at as an old monument that needs to be preserved, is not there. And until our attitude towards what we have as a high-skilled sector of textiles changes, we're not going to be able to A, encourage it, or B, use it as the biggest USP that this country has in terms of fashion. All right, so clearly the need of the hour is to try and protect the heritage of the country. Ma'am, we're going to come back to you, but right now we're going to take a quick break here, but we'll continue this discussion and talk a little more about textile industry on the other side. Do stay with us. बजट 2013 पर खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एचपी कुमार और रितु कुमार, जो कि इस वक्त एमएसएमई और टेक्सटाइल सेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका, yes, we'll go across to Ms. Kumar once again. Ms. Kumar, I really want to know, what do you really want from the budget, what you're looking towards to try and make this sector more competitive, especially looking at FDI in retail. Stores like H&M have already made their interest very clear, wanting to come into India, foray into India. So what do you really need to make this sector more competitive? Well, first of all, I think we have to appreciate what our USP is, and that is not competing with the H&Ms of the world in their mechanized production, but we have a very special collection that comes out of this country which the whole world wants, and I think that is the one that needs to be encouraged. Now when with the excise that is there at the moment, for instance, most of the craftspeople that I work with work in the villages within their own homes, they're doing embroideries, etc. You throw a excise officer at them who wants a separate room which can be lockable. He goes there, he wants to put excise on their production. It is highly cumbersome, and I'm more than sure if anybody did their sums, what they are getting out of excise in terms of value from all these sectors cannot in any way
perhaps even pay for the infrastructure that they have to put into place. It leads to a lot of bribery, and also it leads to a great deal of discouragement in a sector which really needs to be encouraged to the hilt. And I think that is where what would attract people to come into this country, not a mechanized sector as much as our USP, and we really need to both protect it and encourage it. All right, Ms. Ritu Kumar, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us and sharing your inputs with us on our show today. Thank you. All right, let's continue our discussion in the studio now. Ajay, let's talk to Mr. Kumar a little bit about the problems of the MSME sector. बिल्कुल कुमार साहब, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो लगातार ये जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय है। चाइना में ब्याज दरें बहुत कम है, 5-6% के करीब है, हमारे यहाँ 12-13-14%, और जो भी केवल एक सिडबी है जो कि उस कमी को पूरा करता है। ऐसे में क्या कुछ किए जाने की जरूरत है कि कर्ज बेहतर मिल पाए और बेहतर दरों पर मिल पाए? देखिए, इसके लिए बैंक बोरोइंग्स के अलावा और भी जो विकल्प हैं उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एसएमई सेक्टर को अवेयर करने की आवश्यकता है कि बैंक बोरोइंग्स या ये जो कॉस्टली बोरोइंग्स इस समय मिल रही हैं, इसके अलावा अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी हैं जिनके ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि एसएमई सेक्टर यूज टू नहीं है प्राइवेट इक्विटी का, वेंचर फंडिंग का, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं जो कि आ सकती हैं। वहां दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, दिक्कतें हैं, पर ये रूट ऐसा है जो कि ट्राइड है पूरे कंट्री में, बड़े उद्योग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब ईसीबी की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है जो 4 से 5% तक मिल जाता है, तो उसका लाभ छोटे उद्योगों को मिले, इसके लिए कोशिश की जा सकती है सरकार की तरफ से। कुछ पहल इस पे हुई है, वित्त मंत्रालय ने इस पे कुछ निर्देश भी जारी किए हैं, परंतु इसको और तरह से फैलाने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक लोगों को इसमें कवर करने की आवश्यकता है। प्राइवेट इक्विटी के लिए एक्सचेंज, बीएसई एक्सचेंज और एनएसई एक्सचेंज पे अलग से एसएमई एक्सचेंज की जो खोले गए हैं प्लेटफॉर्म्स, उस पे कुछ कंपनीज आई हैं, पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 13 कंपनीज अभी तक आई हैं मेरे सूचना के अनुसार, और वो अगर उसको स्प्रेड किया जाए और उस पर कुछ इंसेंटिव दिए जाएं उनको आने के लिए, क्योंकि उसमें कॉस्ट एक प्रोहिबिटिव है शुरू में आने में, इतना खर्चा लोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है जिससे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। परंतु बैंक बोरोइंग्स और जो बोरोइंग कॉस्ट है उसके अलावा जो मेजर कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। अच्छा, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जो इजाफा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है पिछले वर्षों में इन्फ्लेशन की वजह से, उसको चेक करने के लिए बहुत उसकी आवश्यकता है। All right. Let's first listen in to take our next package, which is on the cycle industry. Well, cycle parts industry in Ludhiana, the heart of the cycle manufacturing India, is now on decline owing to the lack of economies of scale due to tough competition from China-made parts and the lack of government support. Ahead of the budget, the industry is expecting sops from the government for its revival. Take a look at this report. The countdown to the budget has begun, and like all other industries, cycle industry is also hoping high from this budget. The small manufacturers expect to receive interest-free loans to help them execute the orders and upgrade the existing technology, which will help them to compete with rival Chinese industry. The cycle industries are involved in the making of kid bikes and high-end fancy cycles, but there is no sigh of relief for these companies as the debt is increasing by each passing day. Meanwhile, companies like Hero and Avon Cycles are running in losses because of poor infrastructure and lack of funds. The problems faced by Ludhiana's small manufacturers include expensive raw material, lack of skilled labor and the lack of automation in technology, which ultimately results in decline of their production as cycle manufacturers are buying cheap China-made cycle parts instead of the available Indian cycle parts. Business Desk, DD News. ये कहानी सिर्फ साइकिल उद्योग की नहीं है, जो तमाम एक तरह से एक इंडिकेशन है कि जो तमाम एमएसएमई सेक्टर में हैं उनको वही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं जो कि साइकिल इंडस्ट्री को झेलनी पड़ रही है। वही कंपटीशन चाइना से, वही रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसकी बात आपने की और ब्याज दरें बढ़ती हुई। कुमार साहब, फिर भी स्पेसिफिकली आपने अपने मंत्रालय की तरफ से जब भी रिकमेंडेशन दिया है, क्या कुछ बजट कर सकता है, चाहे वो ब्याज दरों की बात हो, चाहे वो पॉलिसी मैटर्स की बात हो, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं इस सेक्टर की एक तरह से बेहतरी के लिए, तो वहां से क्या कुछ निकल करके आ रहा है और कुछ फोकस दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, जो मुख्य समस्याएं हैं वो टैक्स रिजीम के आसपास ही हैं जी। जो एसएमई सेक्टर की डिमांड है वो यही है कि एक तो टैक्स को कम किया जाए और टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए। अब एक प्रिजम्पटिव टैक्स 1 करोड़ तक का जो लगाया गया है, पिछले साल बढ़ाया गया था इसको, अब 1 करोड़ तक के प्रिजम्पटिव टैक्स की अगर सीमा को बढ़ाया जाए तो इससे उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है और कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो कम होगी। जैसे कि मिसेस कुमार भी बोल रही थी अभी कि रिकॉर्ड कीपिंग में और उसको कंप्लायंस करने में बहुत खर्चा होता है और बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे छोटे उद्योगों को प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ा के फायदा दिया जा सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की जरूरत है शायद, क्योंकि अब इस वक्त रोजगार अगर क्रिएट करना है आपको तो उद्यमिता को बढ़ाना होगा और नए सेटअप जैसे की बात करें बहुत मुश्किल आती है और बहुत सारे परेशानियां आती हैं सरकारी सिस्टम से दो चार करने में। बहुत अच्छा, आपने नए लघु उद्योग और नए माइक्रो एंटरप्राइजेस लगाने के लिए बहुत अधिक काम नहीं हुआ है एक्चुअली। इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जिस तरह से भारत सरकार ने अनाउंस की है कि 2025 तक 18% से 25% तक ले जाना है उसको, कंट्रीब्यूशन को, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को, तो उसके लिए नए उद्योग लगाने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए एक तो प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना सिंगल विंडो के माध्यम से और उनको जल्दी क्लियरेंसेस दे के, जितने भी उसके इश्यूज हैं, और दूसरा उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, खासतौर से जो शुरू की इन्वेस्टमेंट है, उसको कुछ टैक्स के माध्यम से इंसेंटिवाइज करके, कुछ स्टेट्स ने दिया है, कुछ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में 5 साल तक की कुछ छूट दी है, परंतु वो एक इरेगुलर असिस्टेंस है, बहुत स्टेबल नहीं है। कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जोन्स में है, कुछ जगह नहीं है, कभी वो आती है फिर वो कभी विड्रॉ हो जाती है। तो ये एक स्टेबल रजीम टैक्स के द्वारा नए इन्वेस्टमेंट पे दे के, और केवल उद्योगों के लिए नहीं, केवल जो ओनर्स हैं उनके लिए नहीं, जो इस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लगाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके लिए भी कुछ फायदा दिया जाने की आवश्यकता है। तो इससे नए उद्योग लगेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे काफी बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया एचपी कुमार साहब इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव इस खास कार्यक्रम में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते आपको दिखाते हैं उत्तर पूर्व राज्यों की एक नैसर्गिक खूबसूरती, इनको शब्दों में बयान करना नाकाफी है। भले ही हम इन राज्यों की खूबसूरती और संस्कृति को अंगीकार करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती पर इनकी कला और संस्कृति का इतिहास की छाप जो है वो साफ दिखाई देती है। आपको ले चलते हैं मेघालय के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पर भी आपको एक एमएसएमई की जो सेक्टर है उसकी एक झलक दिखाई देगी। मातृ सत्तात्मक संस्कृति वाले इस स्थान में बुनकरों के द्वारा बनाए जाने वाले स्थानीय परिधानों से उत्तर भारत के लोग शायद परिचित नहीं होंगे। वेस्ट गारो हिल्स के पारंपरिक परिधानों में दखमंदा का जवाब नहीं। धोती की तरह पहने जाने वाले महिलाओं के इस परिधान को ये हस्तशिल्पी काफी बारीकियों से अपने करघे पर तैयार करते हैं। इन कपड़ों पर अपने हाथों से इनकी बुनावट और इसकी डिजाइन तैयार करना कोई आसान काम नहीं। भले ही आज की युवा पीढ़ी नए परिधानों को अपना रही हो और भले ही ये पारंपरिक वस्त्र सिर्फ गारो हिल्स तक के इलाके में ही प्रसिद्ध हों, लेकिन इनकी मांग देश और विदेशों तक में है। हम ट्रेडिशनल ड्रेस बनाते हैं, गारो ट्रेडिशनल ड्रेस और कोच ट्रेडिशनल ड्रेस बनाते हैं। डिजाइन है, फूल बनाते हैं मिडिल में, ये फूल बनाने में डिजाइन लगता है, और हम लोग का जो है वो तो स्ट्रैप में है। भारत सरकार का लघु उद्योग मंत्रालय पूरे मुल्क में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन यहाँ के स्थानीय बुनकरों को इसका आभास तक नहीं है। सरकार की योजनाएं जो गरीबों और इस तरह के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं इस सुदूर क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचना अपने आप में बहुत दुखद है। आने वाले बजट में इन हस्तशिल्पियों को ये उम्मीद होगी कि सरकार इस उद्योग को समृद्ध और मजबूत बनाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास करे, ताकि इन लोगों का जीवन स्तर और स्वरोजगार के क्षेत्र में और भी समृद्धि आ सके। गारो हिल्स में महिलाओं के लिए बनने वाले ट्रेडिशनल पहनावे कारखानों में नहीं, बल्कि ये आज भी करघे पर ही बनते हैं। प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक का चेन हस्तशिल्पियों के ही कंधों पर होता है। हालांकि सरकार का हस्तकरघा मंत्रालय इन्हीं के बेहतरी के लिए काम करता है, लेकिन इन हस्तशिल्पियों के पास ऐसी जानकारियों का अभाव है। कैमरामैन मलकियत सिंह और एमएम शर्मा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा।
तो आपने देखी मेघालय से स्टोरी। इसी तरह से देश के सबसे बड़े नेटवर्क के अलग अलग कोनों से हम आपके लिए स्टोरीज लेकर के आते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल जब हम ये कार्यक्रम लेकर के आएंगे तो चर्चा करेंगे पावर सेक्टर की सबसे पहले, और टैक्सेशन का जो इश्यूज है उसको उठाएंगे। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड बाय द बजट। वी सीइंग अ फॉल इन द स्टॉक मार्केट्स इन द लास्ट 1 week again. So we'll just have to figure that out. But before we end this show, just let us tell you that you can follow us on Twitter. Our Twitter handle is @DD News Live. We're also available on YouTube @DD News Official. Do log in, watch us. Thanks for joining us today. Namaskar.